Hello everyone, welcome to Career Launcher, and we are starting CAT series from the month of February itself, and we are going to discuss DILR for CAT, and we are going to discuss few type of questions in that is similar type of questions that have appeared in CAT, or in some very relevant questions that might appear, or a variety of questions we are going to cover. So let's start. So basically, we are going to start with set one. Now, basically, if you read the question K, L, M, N, P, Q, R, S, U, and W, there are 10 members in a particular department, and there is a proposal to form a team within the 10 members. Now, and there are certain conditions are given, and now in those conditions, what is conditions? What conditions are given? We need to work on it. So before that, I start solving this thing. I would ask whether I'm audible or not, I'm clearly visible or not. If you have any doubt in listening to me, can you do let me know? Am I audible? Visible clearly? Okay. Okay. Fine. So let's continue. A team must include uh, exactly one among PRS. So basically, we have three people. One is P, second one is R, third one is S. Now, out of these three people, I need to select one person. I can't select all three. Now, this is my first condition. A team must include M and Q, M or Q. So MQ, these two, not both. So between these two, I can select only one. Between PRS, I can select only one. Okay. If a team includes K, so if I am getting K, then L must be there. So these two are going to be together. Either both of them are going to be there or none of them are going to be there. This is what the third point says. Okay. Now it says if S, U, and W, if these three are selected, so again, either all three of them are going to be selected or none of these three are going to be selected. This is what it says. Okay. Now L and N cannot be in the same team. Fair point. So this is one condition that is given to us. And L and U, again the same thing. L and U cannot be in the same team. So basically, if L is there, then K must be there, and N and U must not be there. If U is not there, then S cannot be there, W cannot be there. So this is the condition. So if I'm selecting L, then who's out? U is out. If U is out, then S is out. W is out, N is out. So basically, if I'm selecting L, then these people are out. Out of these people, I cannot select any of those. And this is what that is given to us. Okay. Now I figured out what question is trying to say. But again, there is no information, there is no arrangement. So, and last line says the size of a team is defined as the number of members of a team. Okay. So, what I can do, I can just read the questions and solve the answer. That's it. I can't do anything else. Okay, because if you look, who cannot be the member of team of size 3? Okay. Who can be a member of team of size 5? Okay. What would be the size of the largest possible team? Okay. What could be the size of a team that includes K? Okay. In how many ways a team can be constituted so that the team includes N? Okay. So basically, every question is independent. Now I am looking for a team of 3. Okay. So if I'm looking for a team of 3, then out of these 3, I need to select one person. Now, who's going to be that one person? I don't know. So I am randomly going with going with P. Fine. Now, if I'm saying between these two, whom I can select, I am randomly selecting M. Okay. Now, if I am, so basically, one person out of this has to be selected, one person out of these two has to be selected. So, two people from this group and this group must be selected. This is what I know. Now, if I am selecting K, then L must be selected. So, basically, in that case,
number of members in a team are going to be 4. So L and K are can only be part of a team that has a size of 4. Okay. Now I am going to check with SUW. So instead of P, if I select S, then U and W are automatically selected. Out of these two, one has to be selected. Now remaining people I can select or I cannot select. So basically in this team, at least there are going to be 4 members. So if S is selected, there cannot be 3 members in a team. If L is selected, there cannot be 3 members in a team. If K is selected, there cannot be 3 members in a team. So it means K, L, S, U, and W cannot be a member of team of size 3. And I need to figure out among those people which I have in an option. So L is there. So answer of this question comes out to be L. Okay. Now this one, who can be a member of team of size 5? Okay. So who can be a member of team of size 5? So the simply I am saying that if I want to make a team of size 5, then what I am going to do, I can say if P is selected, M is selected, and K and L selected. So there are going to be how many members? 4 members. So if P is selected, there are going to be 4 members. Right. I can select S, U, W, M, and N. So N can come. So basically, I can have a team of size 5 with whom? With S, U, W, M, and N. So which 5 people can be part of that particular team? S can be there, U can be there, W can be there, M can be there, N can be there. So I would say any of the option is there. That is going to be option 3. That is M. Now, the next one, what would be the size of largest possible team? Okay, so I want to maximize the number of people in a team. Okay, so basically what I'm going to do, if I want to maximize the number of people, I have to select S. So if S is selected, U is selected, W is selected. Now if S is selected, R is gone, P is gone. Now I'm selecting M. So if M is selected, Q is gone. Okay. Now basically out of 10 people, 3 people are gone, remaining people are 7. Okay. Now if U is selected, now basically out of 5, so whom I do have, so I have P, K, L, M. So whom I have selected, I have already selected S. Then P is gone, R is gone. I have selected M. Then Q is gone. Then if I am selecting S, then U is there, W is there. If U is there, then L cannot be there, K cannot be there. So who can be selected? This. So what is the highest size? That can be 5. Okay. So this is what I am getting. Hello Vishwa, how are you? So answer of this question is going to be 5. So there can be 5 members in a team, not made more than 5 members are possible. Now, this one, what could be the size of a team that includes K? Okay. Now my job is to select K. So as you can see, I have to select one out of these 3 people. So P is selected. I need to select one out of these 2 people. So M is selected. Now K and L are selected. So basically there are 4 people. Now 2 or 3, that is definitely gone. If K selected, team of size 3 is not possible. So the only possible answer I can have is 4. So there can be 4 people in a team that includes K. And apart from 4, there may be 5, there may be any number, but the options are talking about 2, 3, 4. So 2 is not a possible option because between P, Q, and S, I need to select one. Between M and Q, I need to select one. So at least 2 people are selected. If K is selected, then L is to be selected. So 4 people has to be there in the team. Okay. Now the next one. In how many ways a team can be constituted so that the team includes N?
Now I need to build a team that contains n. Now in that case, what I am going to do, so in how many ways? Okay. And with n, who cannot come? That is n. Okay. So I am selecting n. So what I am going to do, I am going to write down the remaining people and let's see. So I am going to write it somewhere. I got so that it will become a little easier to understand. So let's say, so I am going to say L and N cannot come together and L and U cannot come together. So I am between PRS, I need to select one person. Okay. Between M and Q, I need to select one person. Okay. Uh, K and L are going to be, so basically who are remaining people? I got K, L. So I'm going to write K, L, N, P, Q, R, S, U, and W. Okay. So if I select P, so out of the three, in how many ways I can select one person? That is three ways. Okay. Between the two, in how many ways I can select one person? That is two ways. Okay. If N is there, these two people are definitely out. Now, when I have selected as U and W are automatically counted in this. So what is the total number of ways I can say? That is going to be 3 into 2. That is going to be 6 ways. Or if you want to do it manually, you can do P, M, N. You can say P, Q, and N. Then you can say R, M, and N. R, Q, and N. Now S, U, W. Then you can say M and N. And you can say S, U, W. And then Q and N. So what is the total number of ways I am looking for? I am going to get 6 total ways. So answer of this question is going to be option 6. Now I am going to see whether I got the answers right or not. So first answer is L, then M, then 5 only 4, L, M, 5 only 4, and the last one is 6. So I got all the answers right. So basically this is how this question should be approached. Is it going to take a lot of time? I don't know, maybe a little. Okay. Now let's read this one. So it says there are 100 families planned wedding on 21st of December 2020 at 9 a.m. An auspicious day and time in New Delhi and booked a marriage hall online in Chhatarpur Farms. Okay. Due to technical glitch, the hall booked simultaneously for 64 families who received a confirmation of deposit of 1 lakh each. Okay. The management on identifying the glitch was troubled and okay, contacted the families for refund, but they were not ready to accommodate. So basically, what this question is trying to say कि 100 फैमिली ने अप्लाई किया कि एक गार्डन बुक करना है वेडिंग के लिए आउट ऑफ दैट देयर वाज वन गार्डन तो एक ही शादी हो सकती है अब उसमें क्या हुआ कि वहां पे उनके सिस्टम में कुछ टेक्निकल ग्लिच आया एंड इंस्टेड ऑफ बुकिंग वन दे हैव बुक्ड 64 फैमिली नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कि हम 63 फैमिलीज को वापस कर देते हैं एक केवल हम एक को करेंगे बट those 64 families, all of them said no. ठीक है. Now, अब क्या होगा? The management and the families then mutually agreed to have a toss. So basically, अब वो लोग कुछ toss करके final कर रहे हैं कि venue किसको मिलेगा. Certain directions, the family were allotted from question number number 1 to number 64. Ascending order, मतलब जो भी नाम के हिसाब से उन्होंने ascending order में 1 से लेके 64 divide कर दिया. It was further decided one will have a toss with a family of 64. ठीक है मतलब एक का 64 के साथ हो रहा होगा देन दो का 63 के साथ हो रहा है प्लस 3 का 62 के साथ हो रहा है सो बेसिकली फर्स्ट राउंड जो हो रहा है अपना कि 1 का 64 के साथ 2 का 63 के साथ 3 का 62 के साथ एंड सो ऑन सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस पार्ट नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट कि एक जो पहला टॉस हो रहा है उसमें दोनों पार्टीज का जो समेशन है दैट इज 65 सेकंड में भी 65
थर्ड में भी 65, नेक्स्ट में भी 65 ही होगा. नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट, एंड दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट. ठीक है. सो उसमें जितनी टीम्स होती हैं पर मैच में, जो समेशन ऑफ टीम नंबर होता है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ टीम से एक ज्यादा होता है. नाउ दिस इज अबाउट राउंड वन. नाउ व्हाट हैपेंड इन राउंड टू? राउंड टू में स्टोरी चेंज हो गई, क्योंकि इन एवरी मैच देयर इज गोइंग टू बी वन विनर, एंड विनर इज मूविंग आउट टू द नेक्स्ट राउंड. तो बेसिकली इनका जो भी विनर होगा वो वन. अगला कौन होगा? वन का 32 के साथ होगा, क्योंकि 32 टीम्स बची. फिर अपना क्या होगा? टू का 31 के साथ होगा. फिर थ्री का, बेसिकली इन दोनों में कोई भी जीतेगा वो वन हो जाएगा, इन दोनों में जो भी जीतेगा वो दो हो जाएगा, इन दोनों में जो भी होगा वो थ्री हो जाएगा. थ्री का 30 के साथ होगा. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ टीम्स आर 32. सो समेशन ऑफ टीम नंबर्स इन मैच इज वन मोर देन द टीम्स. ठीक है. सो अगर मुझे रैंडमली निकालना होगा कि 10 वाले का टॉस किसके साथ होगा, आई कैन डायरेक्टली से 23 के साथ होगा, बिकॉज समेशन ऑफ दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन मोर देन दिस. ठीक है. आगे क्या कह रहे हैं? नाउ ये तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की बात हुई. थर्ड राउंड में क्या कह रहे हैं कि अब जो है, अब जो मैच हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा, पहले का आखिरी का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ नहीं हो रहा. अब जैसे अगले राउंड में 16 टीम बची है, क्योंकि 32 टीम्स थी. 16 मैचेस होंगे, क्योंकि हर मैच में दो लोग होंगे. तो और हर मैच में एक विनर होगा, तो 16 विनर्स होंगे. तो अगले राउंड में राउंड थ्री होगा, उसमें 16 लोग होंगे. अब यहाँ पे जो टीम्स होंगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो 1 और 2 का मैच हो रहा है, 3 और 4 का मैच हो रहा है, 5 और 6 का मैच हो रहा है, 7 8 का मैच होगा, एंड सो ऑन. जो भी है होता रहेगा. अब जो जीतेगा वो अगले राउंड में आएगा, एंड सो ऑन. उसके बाद तो यही चलता रहेगा. ठीक है. नाउ इट वाज आल्सो डिसाइडेड कि अगर फाइनल विनर बोलता है कि मुझे नहीं करना, मेरा मूड चेंज हो गया, तो वो क्या कहेगा? जो दूसरा फाइनलिस्ट होगा उसको वो हैंड ओवर कर देगा, एंड जो विनर होगा उसको रिफंड अमाउंट, दैट इज 1.5 लाख, सॉरी 1 लाख जो उसने डिपॉजिट किया हुआ है, प्लस 1.5 लाख एडिशनल मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एज वी हैव डन इन द प्रीवियस वन. सो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ, तो वी हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इंडिविजुअली. सो बेसिकली इन द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इन द डिसेंडिंग ऑर्डर कैन हैव अ टॉस विद फैमिली 12 इन द फाइनल्स? सो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 64 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 64 टीम्स हैं. उसके बाद हमें 63 पे चेक करना पड़ेगा, फिर 62 पे चेक करना पड़ेगा. अगर 64 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है, तो आंसर 64 होगा. 63 62 नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं. तो लास्ट वाला जो होगा वो आंसर होगा. सो आई नीड टू चेक ऑन 63. अगर 63 के साथ मैच हो रहा है तो आंसर 63 हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो 62 के पे चेक करेंगे. अगर 62 पे हो रहा होगा तो 62 होगा. अगर 62 पे भी नहीं हो रहा होगा, देन वी आर गोइंग टू चेक 61. सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ या ना? पहली बात ये है कि अभी तक हमने जो किया, क्या समझ में आया? अगर आया देन आई कंटिन्यू. टिल नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? हम्म. अगर इस पॉइंट तक समझ में आया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं. और अगर कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई एक्सप्लेन अगेन. आया नहीं आया?
ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो अपने पास राउंड वन में 64 टीम्स है, राउंड टू में 32, राउंड थ्री में 16 टीम्स। 16 टीम्स का नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16। ये 16 टीम है। पहला जो मैच होगा वो इन दोनों का होगा, अगला मैच 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 इन दोनों का होगा, उसका अगला मैच इन दोनों का होगा, उसका अगला मैच इन दोनों का होगा, उसका अगला मैच इन दोनों का। आई एम सेइंग कि इस मैच का जो भी विनर होगा उसको नाम दे देते हैं वन। तो राउंड फोर की बात करते हैं, तो राउंड फोर में 8 टीम होंगी, तो इस मैच में जो भी विनर होगा लेट्स गिव हिम अ नेम वन। इसमें जो भी विनर होगा इसको नाम दे देते हैं टू। इसमें जो भी विनर होगा उसको नाम दे देते हैं तीन। इसमें जो भी विनर होगा उसको नाम दे देते हैं चार। इसमें जो भी विनर होगा उसको नाम दे देते हैं पांच। इसमें जो भी विनर होगा उसको दे देते हैं छह। इसमें जो भी विनर होगा उसका नाम दे देते हैं सात। इसमें जो भी विनर होगा उसको नाम दे देते हैं आठ। 8 टीम्स। अब इन दोनों का मैच होगा, फिर इन दोनों का मैच होगा, फिर इन दोनों का मैच होगा, फिर इन दोनों का मैच होगा। इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं वन। इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं टू। इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं थ्री। इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं फोर। ये अपना हो गया राउंड फाइव, और यहाँ पे 4 टीम्स हैं। फिर अपना आएगा राउंड सिक्स, उसमें होंगी 2 टीम्स। इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं वन, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, और इन दोनों के विनर को नाम दे देते हैं टू। अब जो भी जीतेगा वो आगे जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 का राउंड वन में किसके साथ मैच हो रहा होगा? 12 का राउंड वन में मैच हो रहा होगा 53 के साथ, क्योंकि 12 और इसका समीशन होना चाहिए 65। अब 12 को फाइनल तक पहुंचना है तो 12 तो 12 ही रहेगा, ठीक है। अब 12 यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे 12 और इसका जो समीशन होना चाहिए वो 33 होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। अब 12 को आगे जाना है तो 12 एज इट इज आगे जाएगा, तो 12वां ये टीम है, एंड दैट इज विच वन? 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये वाली टीम है। अब 12 अगर आगे जा रहा है तो 12 ये तो जीता ही है 11 के अगेंस्ट, प्लस 9 और अगले राउंड में 5 से भी जीतेगा। 5 कौन होगा? 9 या 10 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये तो गया, तो अगले राउंड में इन दोनों में कोई नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, ठीक। 5 और 6। उसके बाद इसमें जो भी आएगा वो थर्ड होगा, इसमें जो भी आएगा फोर्थ होगा। मतलब जो विनर होगा वो इन दोनों में से भी नहीं हो सकता, जो फाइनलिस्ट होगा वो इन दोनों के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राउंड में इसके साथ खेल रहा है, ठीक है। अब ये यहां से यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम विनर को काट रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास 1 2 3 4 बच रहा है। 1 2 3 4 का मतलब क्या? 1 2 का मतलब ये इन दोनों में कोई बचेगा, इन दोनों में कोई बचेगा, इन दोनों में कोई बचेगा। तो इसका मतलब ये जो बंदा है ये ओरिजिनली वन हो सकता है। ये मतलब यहाँ पे अगर हम इस वन की बात करें तो ये वन 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज दिस एंड दिस। ये जो वन है, ये जो वन है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीन है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार है इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो फाइनलिस्ट हो सकता है वो अपनी 8 तक की कोई टीम हो सकती है, ठीक है। अगर मैं 62 को देखूं, अगर मैं 63 को देखूं, तो फर्स्ट राउंड में 63 किसके साथ खेल रहा होगा? दो के साथ खेल रहा होगा। अब इसका नंबर तो हो गया दो। अब ये दो है, ये किसके साथ खेल रहा होगा? ये खेल रहा होगा 31 के साथ। अब ये तो जीत रहा है तो इसका मतलब दो जीत गया। अब दो यहाँ पे दो बन के आया, तो इसका मतलब ये जो दो है ये लास्ट राउंड तक जा सकता है। इसका मतलब इसका जो मैच है वो 63 के साथ हो सकता है। नाउ डू वी नीड टू चेक 62 61 60 60? नहीं, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हमें लास्ट नंबर चाहिए। अगर 64 होता देन आई वुड से आंसर वुड हैव बीन 64, लेकिन 64 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग फॉर 63। तो आंसर यहाँ पे आएगा 63, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है
यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं और मोर और लेस जो क्वेश्चन है वो इसी फिगर से अपन सॉल्व कर लेंगे। 57 जो है, 57 का फर्स्ट राउंड में अपोनेंट कौन होगा? तो 57 का जो फर्स्ट राउंड में अपोनेंट होगा वो 8 होगा, उसके बाद वो यहां से जाके 8 बन के आएगा। अब वो 8 बन के आएगा तो इसका किसके साथ मैच होगा? 25 के साथ होगा, और 8 का मतलब वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर वो जीतेगा, जीतेगा ही क्योंकि अगर 51 फाइनल में जा रहे हैं, तो अगर 51 फाइनल में जाएगा तो यहां पे क्या होगा? आ, एक मिनट, एक मिनट, आई एक मिनट। हम्म, अगर 57 8 होगा तो 8 इन दोनों में से होगा, फिर इसका मैच किसके साथ होगा? ये 4 नंबर होगा, 4 नंबर का मैच किसके साथ होगा? 5 और 6 के साथ होगा, दैट इज 3। इन दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। उसके बाद अगले राउंड में इन दोनों के साथ खेलेगा तो उनमें से भी कोई नहीं जीतेगा। उसके बाद उसका इन दोनों से मैच होगा, वो भी कोई नहीं जीतेगा। इसका जो फाइनलिस्ट हो सकता है वो 9 से लेके 16 के बीच में कोई हो सकता है थर्ड राउंड में। अब हमें 9 से लेके 16 के बीच में देखना है कि कौन सा बंदा लाई करेगा। सो 35 का फर्स्ट राउंड में जो मैच होगा वो होगा 30 के साथ। 30 का इस राउंड में मैच होगा 3 के साथ। अब अगर ये 3 बन गया तो ये या तो इस राउंड में होगा या इस राउंड में एलिमिनेट कर देगा। तो फाइनल में 35 तो नहीं हो सकता। 47 देखते हैं, 47 का मैच किसके साथ होगा? 47 का मैच जो होगा वो होगा अपना 18 के साथ। ठीक है, और यहां पे 18 का मैच किसके साथ होगा? 15 के साथ। अब 15 इस पार्ट में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो विनर हो सकता है, जो 57 का जो अपोनेंट हो सकता है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, इन 8 में से। तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि अपोनेंट ये हो सकता है, लेकिन होगा ही इसके बारे में नहीं पता। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 47। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 51 won the toss in the final, then which of the following cannot have a toss in the final? ये क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अगर 51 का फाइनल में टॉस हुआ है तो इसका मतलब कौन सी फैमिली जो है जिसके साथ इसका फाइनल नहीं हो सकता। ठीक है, हमें 51 के साथ देखना है। ठीक है, सो अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग एंड कोई उसमें हमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ देखना है, फर्स्ट एट या लास्ट एट देखना है बस। तो अगर हम देखते हैं 51 को देखते हैं तो 51 का फर्स्ट राउंड में अपोनेंट कौन होगा? सो हु इज गोइंग टू बी द अपोनेंट इन फर्स्ट राउंड? सो 51 इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट 60 14। नाउ 14 इज गोइंग टू प्ले 19। नाउ 14 इज गोइंग टू बी दिस गाय। इसका मतलब जो अपोनेंट होगा वो फर्स्ट एट में होना चाहिए। ठीक है, आ, तो अगर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कैन नॉट। ठीक है, तो अगर कैन नॉट की बात आ रही है तो हमको ये देखना है कि जो नंबर आना चाहिए वो 9 से लेके 16 के बीच में आना चाहिए। नाउ इफ आई लुक एट 27, 27 का अपोनेंट कौन? 38। ठीक है, यहाँ पे 27, 27 का अपोनेंट कौन होगा? 5। इसका मतलब ये तो फर्स्ट हाफ में आ गया, मतलब 27 कैन एक्चुअली बी द अपोनेंट ऑफ 51 इन द फाइनल्स। सो दिस इज गॉन। नाउ लेट्स लुक एट 24। अगर मैं 24 की तरफ देखूं तो 24 कौन होगा? 24 का अपोनेंट फर्स्ट राउंड में कौन होगा? दैट इज गोइंग टू बी 41। यहाँ पे 24 एज इट इज होगा। 24 का अपोनेंट कौन होगा? 9 होगा। अब 9 इसके साथ सेकेंड हाफ में आ रहा है, इसका मतलब 9 इसका फाइनल में अपोनेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब which of the following cannot be the opponent of 51? That is going to be 24. ठीक है, if a toss happened between 9 and 13, then one toss can be between। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैं बेसिकली ये देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9 10 11 12 13 14 15 16। सो बेसिकली अगर मेरा अपोनेंट होगा फाइनलिस्ट में इनमें से एक और इनमें से एक होगा, ये अपने पास क्लैरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि 9 और 13 का जो टॉस हुआ है ये फाइनल में हुआ है। ये 9 और 13 का इन बिटवीन कहीं हो सकता है, राउंड 6 की जगह राउंड 5 में हो सकता है, राउंड 4 में हो सकता है कहीं होगा। फाइनल में तो डेफिनेटली 9 और 13 का टॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें 25 और 44 का चेक करना है। तो अगर मैं 25 को लेके चलूं, 25 का अपोनेंट कौन होगा फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में 64 टीम्स हैं, तो इसका अपोनेंट होगा 40। 44 को अगर देखें तो 44 का जो अपोनेंट होगा वो होगा 19। ठीक है, सॉरी नॉट 19, इट इज गोइंग टू बी 21। ठीक है, अब 32 टीम्स बची, तो अब 25 का अपोनेंट कौन होगा? 8 होगा। सॉरी, 25 का अपोनेंट होगा 8। 21 का अपोनेंट कौन होगा? 21 का अपोनेंट अपना होगा कौन होगा? 21 का अपोनेंट यहाँ पे अपना बनेगा, दैट इज 12। ठीक है, 12। तो इसका मतलब ये अपना फर्स्ट राउंड का है, ये अपना सेकेंड राउंड का है, और अगर 9 और 13 के बीच का हो रहा है मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका और इसका मैच केवल फाइनल में हो सकता है, और 9 और 13 के बीच में टॉस हुआ है मतलब इसके और इसके बीच में टॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। नाउ लेट्स लुक एट 32 एंड 5। ठीक है, सो 32 की अगर बात करें, सो 32 का फर्स्ट राउंड में मैच हो रहा होगा 31 के साथ, सॉरी 33 के साथ। तो जीतेगा कौन? 32। 32 खेल रहा होगा फर्स्ट के साथ। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का मैच किसके साथ हो रहा होगा? 5 का मैच हो रहा होगा अपना उसके साथ, क्या कहते हैं, 60 के साथ। अब ये जो 5 है ये अपना क्या कहते हैं, 5 का मैच हो रहा होगा 28 के साथ। अब ये अपना मैच जीतेगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। पहले मैच में ये दोनों में से ये जीत गया, अगले मैच में इन दोनों में से कोई जीत गया, इस मैच में इन दोनों में ये जीत गया, इस मैच में इन दोनों में ये जीत गया। तो पहले मैच में 1 आया, अगले मैच में 3, इन दोनों का मैच होगा, फिर यहाँ पे 5 आया और यहाँ से आया 7। अब ये अपना मैच जीत गया, ये अपना मैच जीत गया, मतलब 1 और 5 के बीच में मैच हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सो इसका मतलब 32 और 5 के बीच में मैच होना एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसका आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन बोल रहा होता कि 7 के साथ हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता? 32 और 7 के बीच में मैच हो सकता है, हो सकता है। 32 8 के साथ के बीच में मैच हो सकता है, हो सकता है। 32 4 के बीच में मैच हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? So all of those possibilities are definitely there. Is it a guarantee? Definitely not. Now let's check the answers. So basically I got 63. Did we get 63? Then did we get 47? Yes, 24, 32 and 5. So this is the approach of this, and this is a very good question of games in tournament. And this was not exactly, I would say, uh, games in tournament knockout thing. It was half of knockout and half of logic, and but still, this is one of a type that explains a lot of different concepts that can be used in LR. So I hope you learned something in this session. Thank you. And remember this, we are going to conduct a race to 99, that is CAT 26. We are starting a little earlier this year. The first session is going to happen on 21st of February. The timing is 11 to 30, 11 to 1. Second session is going to be on Sunday. Again, the timing is going to be 1 to 3. Then third session is going to be on 1 to 3 on next Saturday, that is on 28th. And next is going to be first match, that is 11 to 1. So basically race to 99 is always a must attend session, and it is definitely going to be a live strategy program, that how you should approach CAT. And if anyone has any doubt, then kindly do let me know. Thank you.